خداوند تو روح سے بھر اور اپنے الفاظ بھر اور اپنے پاک روح اور مسح کو بھیج تاکہ ہم تیرے اس ادائیگی کو ادا کر سکیں اور اپنا تیرا جو کلام ہے دوسروں کے سپرد کر سکیں تاکہ وہ دنیا میں پھیلنے کا سبب بنے اور تاکہ خداوند وہ سنے اور برکت پائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. تیرے بیٹے یسوع نام سے مانگتے ہیں, آمین. آئیں جی ہم ملاکی کی کتاب اس کا 3 باب اور یہ جو آج کا کلام ہے ملاکی 3 باب اور اس کی 10ویں آیت, یہ دینے کے حوالے سے آج کا کلام ہے, جو کہ ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیتے اور لیتے ہیں, مگر جو ہمارا اوریجنل حق ہے, جو ہماری خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے, اور وہ حق ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم کیا نہیں پاتے, برکت نہیں پاتے, آگے نہیں بڑھ پاتے. ہماری زندگیاں وہیں رکی رہتی ہیں, تھمی رہتی ہیں, سالوں سال گزر جاتے ہیں, اتنے سال گزر جاتے ہیں, تب بھی ہماری اولادوں کی اولادیں برکت نہیں پاتی, کیونکہ ہم خدا کا دیے ہوئے میں سے کچھ اسے دیتے نہیں ہیں, نہ اس کو امپلیمنٹ میں لاتے ہیں. اپنی بیماریاں, ہاریاں, دکھ, تکلیف, رشتے دار سب کو آپریٹ کرتے ہیں, مگر حصہ کس کا کھا جاتے ہیں, خدا کا کھا جاتے ہیں. اس لیے ہمیں جو خدا کا آج کا کلام ہے وہ دینے کے حوالے سے ہے, اور دینے والا ہمیشہ مبارک ہوتا ہے. آئیں ہم ملاکی 3 باب اس کی 10ویں آیت سے پڑھیں گے کہ پوری دائرے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو, اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساؤں گا نہیں, یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے رکھنے کی جگہ نہ رہے گی. ہمیں اپنے خدا کے اس زندہ کلام میں برکت کے حوالے سے جاننا اور ذخیرے کے حوالے سے جاننا, اور یہ ہمارے لیے بہت لازمی سبجیکٹ ہے جس کو لوگ اگنور کر جاتے ہیں اور اس کو درگزر کر جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ان کا جو محور ہے لائف کا وہ قائم نہیں رہ سکتا. اور اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک خاص کلام کا یہ 10ویں آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ پوری دائرے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. کیا لانی ہے دائرے کی جو 10% ہے, 10واں حصہ ہے, جو خدا نے ملاکی کی کتاب کے 3 باب کی 10ویں آیت میں کہہ کہ پوری دائرے کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو. کیا ہمیں خوراک جو جسمانی خوراک ہم کھاتے ہیں تو روحانی بھی کھاتے ہیں, تو ہمیں یہ خوراک روحانی اور جسمانی دونوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جب ہم جسمانی بھی کھائیں گے اور روحانی خوراک بھی کھائیں گے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے, اس کی پوری دائرے کی لانی ہے. لفظ ادھر استعمال ہوا ہے پوری دائرے کی, مطلب اس میں ہماری کٹوتی نہیں ہونی چاہیے, ہماری اس میں سے نکالی ہوئی چیز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ خدا کبھی بھی ایسی چیزیں نہیں لیتا جس کو ہم کٹا ہوا, خراب کیا ہوا یا پھینکا ہوا یا کوئی ہم نے ادھر ادھر سے بچا کر ہم نے رکھا. ہمیں ان کے صحیح پھلوں میں سے صحیح حصہ نکالنا ہے تاکہ خدا اسے کیا کرے, بلیس کرے. 90% انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے, صرف 10% خدا کی دائرے کی ہے. جیسے 100 روپے میں سے 10 روپے, 1000 روپے میں سے 100 روپے, اور 10,000 روپے میں سے 1000, اور 1,00,000 روپے میں سے 10,000 دائرے کی بنتی ہے ہر ایک کی پیسے کے حوالے سے. اور جس کی جتنی سیلری ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ جو وہ دے گا تو خدا اس کو کیا دے گا, برکت دے گا. آگے چلتے ہیں کہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا کیا کرو, امتحان کرو. من اس کو آزما کر دیکھیں, یہ خدا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, آزما کر دیکھو. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے, رب فاج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے کیا کھول دوں گا, دریچے کھول دوں گا. مانا آسمان کھول کر کیا دے گا, برکت برسائے گا. مطلب ہم جب 10% دیں گے تو خدا ہمیں کیا دے گا, انلمیٹڈ دے گا. آگے کیا اس کے لیے لکھا ہے, یہاں کے نہیں یہاں تک کہ
तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहेगी। मतलब इतनी अनकम्प्लीट बरकत वो आपको देना चाहता है। और ये खोता कौन है? सिर्फ हम खुद खोते हैं, हमारी कोताहियाँ खोती हैं, हमारा लालच को हमें खोने में मजबूर करता है। हम कहते हैं कि नहीं, खुदा का हिस्सा हम रोक लें, बाकी काम होते रहते हैं। खुदा ने कौन सा हमसे मांगना है, जहाँ हमें कोई डिमांड करनी है, जहाँ हमसे पूछना है, जहाँ उसने किसी को भेजना है। इस दौर के अंदर हम खादम को इसलिए नहीं देते क्योंकि खादम सही जगह पर लगाते नहीं है या चेक सही जगह पर लगाते नहीं है। हमें ये वजह नहीं रखनी चाहिए, हमें ये वजह रखनी चाहिए खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। खुदा का कलाम हमें 10% देना सिखाता है। वो चर्च जाने, पादरी जाने और लोग जाने, जिसने इसको खाना है, रखना है, इस्तेमाल करना है, ये उसकी जिम्मेदारी। आपकी क्या जिम्मेदारी है कि उस 10% को आपने ईमानदारी से पूरे तरीके से देना है। जब आप पूरे तरीके से देंगे तो खित्ते किसके बढ़ेंगे, दरीचे किसके बढ़ेंगे, बरकतें किसकी बढ़ेंगी, चर्च की या आपकी? आप अपनी बरकतों को रोकते हैं, चर्च की बरकतों को नहीं रोकते। जो खुदा के घर में देता है वो आगे बढ़ता रहता है और उसके घर में कभी कमी नहीं होती। ये हमारा यूनाइटेड मेथोडिस्ट आज इतना पीछे क्यों है? इस वजह के मैं हमेशा ट्रू बात करने के लिए दैनिकी की बात करता हूँ, कलाम की बात करता हूँ और उस फेथ की बात करता हूँ। हमारी ट्रिनिटी का फेथ है और पूरी दुनिया में माना जाता है, पूरी दुनिया में यूनाइटेड मेथोडिस्ट के कलाम खिलाया जाता है और पूरी दुनिया में इसकी डॉक्ट्रिन को एक्सेप्ट किया जाता है। आए हम इसकी 17वीं आयत पढ़ेंगे मलाकी की किताब की, जो कि हमें इस बरकत के बारे में बता दे। रब फरमाता है कि उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मिल्कियत होंगे। क्या कह रहा है? उस रोज क्या होंगे? मेरी वो खास मिल्कियत होंगे जब आप 10% दैनिकी देंगे। कब हो गया खास मिल्कियत? जब आप 10% दैनिकी देंगे। आगे चलते हैं ये, और मैं उन पर ऐसा रही हूँगा कि जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। किस पर? अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है। जो बच्चा अपने बाप की खिदमत करता है, बाप उस पर अपना सारा कुछ लुटा देता है, सब कुछ उसे दे देता है। इस दैनिकी देने से हमारा खुदावंद हमें क्या दे रहा है? हमें वो बेटा बना रहा है, वो बरकत हमें देना चाह रहा है जो हम लेने के लिए बहुत सारी सुस्ती कर जाते हैं, बहुत सारी कोताही कर जाते हैं, बहुत सारा हम उस काम को अपने ऊपर लाइफ पे ऑपरेट नहीं कर पाते। हमें अपनी दैनिकी अब से सीखनी चाहिए। चाहे हमारे पास 100 रुपया है तो हमें उसमें से 10 रुपये निकाल लेने चाहिए। ये भाई खुदा का हिस्सा मैं खुदा के घर में दूंगा, और उससे क्या हो गया? हमें खुदा अपने बेटियां बेटे बनाएगा और हमें आसमान खोलकर उसने हमें बरकत बरसानी है और हम इससे अपने आप को ना रोक के ना रखें। यही पैसे आपके किसी और जगह पे लग जाते हैं, आपके हॉस्पिटल में लग जाते हैं, एक्सीडेंट में लग जाते हैं, किराए में चले जाते हैं, बिलों में चले जाते हैं। तो इसलिए हम जब खुदा का हिस्सा नहीं देते तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि हमें सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकालना है, दुनिया के पास सारे काम। और खुदा ने तुमसे कोई ये नहीं मांगा कि मुझे 100 का 100 दे दो, सिर्फ उसने 90% आपको इस्तेमाल के लिए दिया है और सिर्फ 10% आपसे मांगा है। हम चलेंगे आगे कलाम के हवाला जात के हिसाब से। आज हम इसके बारे में ही सीखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए जो है ना बहुत ज़रूरी मैसेज है और लोग इसको सही तरीके से सिखाते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं, और उससे क्या होती है? हमारी क्या हो जाती है? बरकतें रुक जाती हैं और हमारी बरकतें रुकनी नहीं चाहिए। हमें अपनी बरकतें कैसे खोलनी है, ये तरीका खुदा का जिंदा कलाम हमें सिखाएगा। हम पढ़ेंगे मत्ती 6 बाब उसकी 3 से 4 आयत। मत्ती 6 बाब उसकी 3 से 4 आयत। और बल्कि जब तू खराब करे तो जो तेरे दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। क्या करे? जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने। इसका मतलब ये है कि जब आप मुट्ठी बंद करके दो, उसे कोई ना देखे, उसे कोई ना जाने, उसे सिर्फ
तुम्हें पता होना चाहिए या खुदा को पता होना चाहिए। हमें कैसे डालना है खुदा के घर में, सिर्फ उस हमें पता होना चाहिए या खुदा को पता होना चाहिए, उस पादरी को भी पता होना चाहिए, उस चर्च को भी पता होना चाहिए कि किसने कितने डाले। अगली आयत पे चलेंगे, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। क्या रहे? पोशीदा रहे, राज में रहे। और इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है, क्या देखता है? बाप पोशीदगी में देखता है, जो रूपोश है, तुझे क्या देगा? बदला देगा। जब हमें कोई बदला चाहिए, हमसे कोई खुदा से कोई एडवांटेज चाहिए, तो हमें उसे देना पड़ेगा, और देने ही से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और हमारी जो बरकतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं वो क्या करेगा? खुदा खोल देगा। और इसी मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 1 से 2 आयत हम फिर से पढ़ेंगे। खबरदार, आगे क्या लिखा हुआ है? खबरदार, रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। किसके सामने ना करो? आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। जो दिखाकर खाना खिलाता है, जो दिखाकर पैसे देता है, जो दिखाकर उसके आगे चलता है, ये पोशीदगी की बात है। ये 3 और 4 क्या आयत है? पोशीदगी में छुप कर तुम्हें देना चाहिए, ताकि तुम्हारे पैसे को तुम खुद भी ना जान सको, देख सको, और ये आदमियों के सामने दिखाने के लिए हो। आगे बढ़ूंगा, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। खुदा ने क्या कहा है? जब हम छुप कर मुट्ठी बंद करके नहीं देते, तो खुदा ने आसमान पर हमारा अजर भी नहीं छोड़ा। उसने अजर भी हमारा क्या रख लिया, कुछ अजर नहीं दिया। जब हम देंगे तो हमारा अजर है, तो देंगे कैसे? पोशीदगी में देंगे। हमें उस बात को अपनी जिंदगी में रखना चाहिए कि हमें कैसे देना है और किस तरीके से देना है, और हमें पोशीदगी में देना है। दूसरी आयत में बढ़ेगी मत्ती 6 बाब की। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नसरिंगा ना भिजवा। क्या ना भिजवा? मन शोर नहीं कर, नाच नहीं, बहुत सारा शोर गुल नहीं कर, और नसरिंगा नहीं बचा। नसरिंगा होता है बहुत दूर तक उसकी आवाज जाती है, इसलिए कि कोई भी ऐसा काम कर उसको बिल्कुल ठप कर, खामोशी के साथ कर, ताकि वो आगे चलकर जैसा रियाकार इबादत खानों में करते हैं। कैसे कौन करते हैं? रियाकार लोग, हाँ, दिखावे वाले लोग, जो वो खुदा को भी दिखाते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं, दुनिया को भी दिखाते हैं, और अपनी रियाकारी से क्या वो बाज नहीं आते। इसलिए उसके लिए खुदा ने क्या रखा है? कुछ अजर नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। चोरों में करते हैं ताकि लोग उनको बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। जो हम दिखाकर जहाँ नुमाइश कर खुदा को पेश करते हैं, जहाँ उसको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं फलां हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो आपके लिए जो है ना, उसके लिए कोई बेनिफिट खुदा ने आसमान में नहीं रखा है। आपने ये कुछ भी करना है, सीक्रेट तरीके से करना है, खुदा को देना है, तो दिखा कर नहीं देना है। खुदा के लिए जो कुछ रखना है और उसके लिए पब्लिसिटी नहीं करनी, इसलिए खुदा उसके लिए क्या नहीं रखता? बड़ा अजर नहीं देता उसको। हमें जब भी देना है, दिल से देना है और छुपा के देना है। हम आगे बढ़ते हुए खुदा के कलाम को सीखते हुए तो बहुत सारी बातों को हमें आज सीखना है और इसी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, और खुदावंद का जो आज का कलाम हमें दे रहा है वो देने के हवाले से। जब हम देते नहीं हैं तो बरकत भी नहीं पाते। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 42वीं आयत पढ़ेंगे हम, 42 वर्स। ये मत्ती 5 बाब उसकी 42वीं 42 वर्स है। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे। ऐसा कोई करता है? जो कोई उससे मांगे क्या वो दे देता है? ऐसा कोई भी नहीं करता कि जो कुछ हमसे मांगे और हम उसे पकड़ा दें। खुदा ऐसी मोहब्बत आपसे चाहता है, ऐसी मोहब्बत चाहता है जिसके अंदर आपकी मोहब्बत जाहिर हो, नजर आए और दिखावे की नहीं हो। अब ये क्या कह रहा है? जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मना ना कर। क्या हम कर्ज चाहने वाले को एक ही बार में मांगने से दे देते? नहीं, उसे बहुत सारे बहाने, बहुत सारे पॉइंट बताने पड़ते हैं, बहुत सारी डिटेल बतानी पड़ती है। उसके बाद हम उसको उसका चौथा हिस्सा अदा करते हैं। वो भी कहते हैं कि
وقت سے بھائی ادا کر دینا، یہ میرے بڑے قیمتی اور خاص پیسے تھے، میں نے کسی کام کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو اسے دے دینا مجھے. اور اس کے بعد وہ اب کرتا اس سے دے کر جب وہ تھوڑا دیر کر جاتا ہے یا ڈیلے ہو جاتا ہے تو ہم اس کے دروازے کے نا چکر لگا لگا کر کبھی چھوڑتے نہیں جب تک وہ ہمارے پیسے نہ دے دے. تو ایسی محبت بھی خدا کو بھی پسند. جو درکار ہے، جو آپ کر سکتے ہو وہ آپ کو کرنا چاہیے. اور جب کوئی آپ سے غلط کرے گا تو آپ کا زندہ خدا آسمان پہ موجود ہے، وہ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور اس سے ڈبل آپ کے پیسے بھی آپ کو واپس کرے گا. اسی حوالہ کی 5 باب اور اس کی 40ویں آیت تک ہم جائیں گے. اور اگر کوئی تجھ پر نالش کرے کہ تیرا کرتا لے نہ چاہے تو چوگا دینے سے بھی اسے دے، چوگا لینے سے بھی دے. جو چوگا یا کپڑا یا کرتا اس نے پہنا تھا، کہ کوئی تم سے مانگے، کبھی ایسا ہم نہیں کرتے کہ کوئی ہم سے سوٹ مانگے تو ہم سے سب کچھ ہی اتار کے دے دے. ہمیں خدا نے اس چیز سے یہ سکھایا ہے کہ ہمیں جب کوئی ضرورت مند ہو اسے ہمیں دینا چاہیے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے. ہمیں اس ٹائم پہ اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے، اس سے ایسی بات نہیں پوچھنی چاہیے، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے، اس کے پس آئینے میں نہیں جانا چاہیے کہ تجھے کیا مسئلہ تھا، کیا وجہ تھی، تو کیا تھا، تو اتنا غریب کیوں ہے تو. ہمیں جسے سردی لگتی ہے اسے آپ کو کمبل ہونا چاہیے، جسے گرمی لگتی ہے اسے کوئی پنکھا خرید کے دے دینا چاہیے. یہ آپ کا کیا ہے، اس شخص کے لیے محبت کا پیغام رسید ہوتا ہے. وہ آپ کے لیے کیا، جب اس کے دل سے دعا نکلے گی تو وہ آپ کے بال بچوں گھر بار پتہ کس چیز کو برکت بخشے گی. آئے ہم کلام کے اندر آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے اور کلام کی بہت ساری گہری باتوں کو آج جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. صرف میں دینے کے حوالے سے سب حوالے آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ کلام کے اندر دینے کے حوالے سے کتنا کچھ لکھا ہوا ہے. اور ہم اس کے لیے لوکا کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 38 ورس 38ویں ورس کو پڑھیں گے. یہ دیا کرو، کیا لکھا ہے، دیا کرو. غور سے سننا، دیا کرو اور تمہیں بھی دیا جائے گا. جی ہم دیتے نہیں ہیں ہمیں ملتا نہیں ہے، ہمیں اس کے لیے دینا پڑے گا پھر خدا ہمیں دے گا. اور یہ عمل ہے جو ہمیں ریپیٹ کرنا ہے، ہم دیں گے پھر ہمیں ملے گا. آگے چلیں گے. اچھا پیمانہ دبا دبا کر اور ہلا لا کر اور لبریز کر کے تمہارے لیے ڈبوں میں بھریں گے، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا. مطلب لیول آف لائف، لیول آف منی، لیول آف اسٹینڈرڈ، لیول آف فوڈ، ہمیں ہر اس لیول کے لیے، اس پیمائش کے لیے، اس لیول کو جو ہم بھر کے دیں گے کسی کو. ہم کبھی بھی ہم سے کچھ سالن مانگنا آتا ہے تو ہم نے کبھی اسے کٹورا یا ڈونگا بھر کے نہیں دیا، ہم اسے کٹوری میں سالن دیتے ہیں. جب ہم نے کٹوری میں دیا ہے تو ہمیں بھی کٹوری میں ملے گا. جب ڈونگے میں دیں گے تو ہمیں بھی ڈونگے میں ملے گا. ہم دیگ میں دیں گے تو ہمیں بھی دیگ میں ملے گا. تو جیسے دیتے ہیں ویسے خدا ہمیں ریٹرن کرتا ہے، تاکہ ہمارا جو اندر ہے وہ خدا کے دینے کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور ہم لینے کو چیک کر لیتے ہیں. اور ہمیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے. جب ہم جوڑ کے نہیں رکھیں گے لینے اور دینے میں، یہ زندگی، ایک بات یاد رکھیں، یہ زندگی فانی ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی. جو امپلیمنٹ آپ اپنی لائف میں کرو گے وہ خدا دیکھے گا. یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے بہت زیادہ 16 گھنٹے موبائل دیکھ لیا، یا بہت بڑی مارکیٹ سے بہت زیادہ شاپنگ کر لی، تو یا بہت سارے لوگوں کا حق کھا لیا، تو یا بہت سارا پیسہ جمع کر لیا. جو خدا کے لیے کرو گے خدا نے وہ دیکھنا ہے، جو اپنے لیے کرو گے وہ خدا نہیں دیکھتا. اور آگے آپ نے پچھلی آیت میں دیکھا ہے کہ اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے جو شخص خدا کو دیتا نہیں ہے یا اس کے پیچھے چلتا نہیں ہے یا اس کے ساتھ یہ، یا بھر بھر کے اور اس کو دبا دبا کے دیا گیا اور لبریز کر کے دیا گیا، اس لیے تاکہ خدا بھی ہمیں ایسے بھر کے لبریز کر کے دے تاکہ ہماری جو زندگیوں میں کمیاں ہیں وہ پوری ہو سکے. اسی کی
5 बाब की 7वीं आयत से लेंगे कलाम को, इसके वो मेरी वर्ष जो आपके पैमाने को देने के हवाले से, ये उसकी कि हमें देना किस तरीके से है। ये 41 वर्ष से 41वीं वर्ष है 5 बाब की लूका की इंजील की। तू क्यों कर अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शतीर पर गौर नहीं करता। हमें एक दूसरे या फैमिली पे बड़ा गौर करते हैं, बड़ा देखते हैं, और जिन चीज़ों को हमें देखना और जानना है वो हम जानते नहीं। हम खुदा के कामों को नहीं देखते, खुदा की बातों को नहीं देखते जिससे हमें बरकत मिलती है, हम आगे बढ़ते हैं, बल्कि फैमिली की शख्सों के हम कीड़े या बहुत सारी ऐसी बातें बाहर निकालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे की क्या होती है, रूह रंजीता होती है। जब रूह रंजीता होती है तो बरकत उठ जाती है। तो देने लेने से दिल का जो है ना बोझ भी हल्का होता है। हमें वो चीज़ देखनी है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी है। हमें उन्हें देना है, उन्हें देखना है, उन्हें परखना है जो तकलीफ के अंदर रहते हैं, जिनको देने से हमें खुशी मिलती है। और हम ये देते हैं तो खुदा उसके बदले में डबल देता है। आए हम 42 की वर्ष देखें। और जब तू अपनी आंख के शकीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कह सकता है कि भाई ला उसको दे, हम उसे उसके कुर्ते को जो तेरी आंख में है, तिनका जो तेरी आंख में है उसे निकाल दो। हम किसी के अहम को या किसी की बड़ी चीज को बहुत गौर से देखते हैं। हम तिनका तो हमें नजर आ जाता है, मगर अपनी आंख का शरीर हमें नजर नहीं आता। हमें इस बात का गौर करना है कि दूसरों पे एंजॉय करना, दूसरों के अंदर से निकालना, हमें सिर्फ उस बात पर गौर करना है कि हमें अपनी बरकत कैसे हासिल करनी है। खुदा हमें इसके बारे में क्या सिखाता है, हमें देने के हवाले से। हमें एक दूसरों की बातों पर नहीं लगना, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में क्या आ जाती है, रुकावटें आ जाती हैं। और इसी की लास्ट वर्स है, ऐ रियाकारो पहले अपनी आंख में से शतीर निकालो, फिर उसके तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सके। हमें उस बात पर गौर करना है कि हमें एक दूसरे को खाली करना है, एक दूसरे से ऐसी बातों से परहेज करना है, वो भी अपने खानदानों से, बाहर इधर जहाँ भी हमें मौका मिले हमें ऐसी बातों के साथ उलझना नहीं है, जाना नहीं है, और हमें ऐसे काम नहीं करने ताकि हमारा जो ज़मीर है वो पाक और साफ रहे। उसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, उससे क्या मिलेगी, हमें बरकत मिलेगी, देने में हमारा दिल खुलेगा, खुदा हमें उसके बदले बहुत सारी बरकत देगा। और हम चलेंगे कलाम के अगले हिस्से पर, और ये कलाम आपके लिए आज बहुत सारी बातें और मिसालें इसलिए पेश कर रहा है, और ये मेरा लास्ट है जो आपकी ज़िंदगी में एक रोशनी और अमल को पैदा करता है। और उसके साथ ये है याकूब और उसका 2 बाब और उसकी 15 से 17 आयत है। याकूब हाँ जी, हम देखें कि 15 से 17 आयत। अगर कोई भाई या बहन नंगी हो, अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रवाना करे, और रोटी की कमी हो, क्या हो, हाँ, उस शख्स को जिसको तू रवाना करे और उसको कपड़ों की ज़रूरत हो, उसने कपड़े ना पहने हो, या उससे वो इससे ये मुराद है कि बाज़ लोग बहुत गरीब होते हैं, अपने लिए कुछ हासिल नहीं कर सकते, और उससे हम रोटी की कमी हो तो हम उससे कपड़े नहीं दें। और ये आगे आए 16वीं आयत, और तुम में से कोई उनसे ये कहे कि सलामती के साथ जाओ। क्या हम किसी को ऐसा करना हमारे लिए दरकार है? नहीं, हमें उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए जो कलाम के मुताबिक हमारे लिए बहुत बेहतर है। अब आगे हम सीखेंगे 16वीं आयत के अंदर, और तुम में से कोई उनसे कहे के साथ आ जाओ, और अगर गर्म हो और सेब रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे तो क्या फ़ायदा।
हमें किसी को जो कोई गंदा है उसे हमें क्या देना है, कपड़े देने हैं। उसकी जरूरत क्या है, कपड़ों की जरूरत है, ढकने की जरूरत है, छुपाने की जरूरत है। ये भी हमें एक देने का अमल है जो कि हमें वक्त की नौबत के साथ से और मौके की मुनासबत के सवाब से खुदा ने हमें सिखाया है कि हमें देना कैसे। जो किसी को ठंड लग रही है तो हमें उसे चादर ओढ़नी चाहिए, अगर जो किसी को गर्मी लग रही है तो उसे हमें ठंडा पानी पिलाना चाहिए। ये भी हमारे अजर में आता है और हमारी उस खिदमत में आता है जिसको हम इम्प्लीमेंट में लाते हैं और हमें लाना भी चाहिए। और आगे मैं सत्र में इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमल ना हो तो अपनी ज़ात में से वो क्या है, मुर्दा है। हमें जो ईमान के साथ ये काम करते रहेंगे खुदा को देने के लिए और इस इम्प्लीमेंट को जारी रखेंगे और खुदा को आगे रखेंगे तो ज़रूर हमारा ईमान जिंदा ईमान लाएगा, ना कि मुर्दा ईमान होगा। और मैं इसके की 2 बार की 20वीं आयत पर नजर करूँगा। लास्ट वर्ष है ये, मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमल के बेकार है। हमें अमल के साथ देना है, अमल के साथ लेना है और यही हमारा जो आज का प्लान था और आज की ये बात थी। और इसके साथ हमारा तरीके का ये होना चाहिए कि हमें उस ईमान के बिना हम दे नहीं सकते। जब तक हमारा खुदा यीशु मसीह के ऊपर ईमान नहीं है, जब उसके ऊपर हमारी वो रियासत नहीं है, जब हम ये आखिरी आयत को मैं फिर एक बार आपके आगे दोहराऊंगा ताकि हमें पता हो। मगर ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमल के बेकार है। हमें अमल करना लाजमी है, हमें देना चाहिए। जब हम देंगे तो ये अमल है, हम किसी की हेल्प करेंगे तो ये अमल है, हम किसी की साथ चलेंगे तो ये अमल है। हमें उसके कलाम को पढ़ेंगे और उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ये देने के हवाले से। हमें किसी के साथ चलने के लिए उस पर अमल करना और जिंदा रहना है। और हमें ज़िंदगी के साथ साथ अपने अंदर बहुत सारी ऐसी बातों को ऐड करना है जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, खुदा के साथ है, खुदा के साथ है। ये जो देने का अमल है डायरेक्टली का, ये सिर्फ आपके ऊपर 10% लागू है। बाकी तो आप खुदा को 100% भी दे सकते हैं, बिलियन रुपए भी दे सकते हैं। वो आपके दिल पर है कि आप खुदा को कितना देना चाहते हैं। मगर जो खुदा ने एक्सेप्ट आपसे किया है, मांगा है, वो सिर्फ आपकी दया की है जो कि टोटल 10% होती है। जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। उसी से देकर हमें उसका अपने जो बंद नीचे हैं उनको भरना और बहुत भरना है ताकि ये जिंदगी आपके साथ साथ चले। खुदावंद आपको इस कलाम से, इस हवाला जात से और देने से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।